Good evening, everyone. Please let me know if you can hear me and see me and also see the PPT. प्लीज बताएं कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं एंड आप पीपीटी भी देख सकते हैं. Good evening. Yes. Okay. Thank you for confirming. So, कैसे हो आप सब? How was your weekend? कैसा रहा आपका संडे एंड कैसा आपका मंडे जा रहा है? We can hear you and can also see the PPT. Thank you so much for confirming. Thank you for confirming PPTs as well. Okay. So, how is everyone doing today? First day of the week, Monday, most hated day of the week. एंड कैसा था आपका वीकेंड? क्या करा कल संडे को? कैसा गया आपका संडे? डिड समथिंग इंटरेस्टिंग? आई एम सिक. ओ वेल, होप दैट यू गेट वेल सून. पलक, क्या हो गया आपको? ऑल गुड. ओके. मंडे ब्लूज. दे डू. वाटर पार्क. ओह वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. चलो, किसी ने तो फन किया. वो वाह, ऊनो रिवर्स. I've been having a very bad headache. Oh, headaches can actually be really, really terrible. It's okay. आपने कोई दवाई ली पलक? Or some balm or something? Headaches are the worst. I do agree with that. I sympathize. मेरी sympathy आपके साथ है पलक. Ma'am, what did you do? Me? Let's ignore that question. Me, I worked a little. I slept a lot. I was at home. कुछ खास नहीं. हाँ, मैंने क्ले खरीदे. एयर ड्राई क्ले आजकल बहुत ट्रेंडी है ना, एयर ड्राई क्ले. सो आई बॉट देम एंड होपफुली अगर कुछ बनाऊंगी तो दिखाऊंगी जरूर. या अगर वो सूख गए तो वो अलग बात है. गोइंग टू सी अ डॉक्टर. यस, यू श्योरली डू दैट. एंड इट्स गुड कि आपको हेडेक हो रहा है फिर भी आप लाइव में आए हो. यू आर ट्राइंग, showing some resilience, fighting it, studying still. That's really good. Okay. Okay. Now, can you tell me a little about your schedule though? Like, I was thinking कि मैं ना थोड़ी स्ट्रैटेजी कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग करूं, लाइक जो कि मैंने यूज करी थी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए. तो परहैप्स दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. तो आप मुझे बता सकते हो लाइक व्हाट इज द टाइम कि आप जिसमें स्टडी कर रहे होते हो? गुड इवनिंग श्वेता. कौन से टाइम होता है? लाइक सुबह के टाइम में आपका कॉलेज होता है या वर्क होता है, या शाम के टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, या वाइस वर्सा? अ लिटिल अबाउट इट सो आई कैन कम अप विद some schedule, timetable, or like some strategies, maybe pass you my wisdom, what I did. At night, I prepare, college in the morning. Okay, okay. Night owl, ma'am. Okay. Relatable. I don't know that this is not a very good thing, not something I'm proud of. But पता नहीं क्यों सुबह में मुझसे भी कुछ काम नहीं होता और रात में I'm like very active. तो इस चीज को चेंज करना है मुझे. Morning time like from 12. That is good. That is very good. Morning time. Okay. Okay. Night owl. Another night owl. Okay. All right. Okay, so I'll come. So like 50-50 है. काफी लोग मॉर्निंग में भी पढ़ते हैं, काफी लोग रात को डेडिकेट करते हैं. So I'll come up with different schedule strategies. I am going to cry, Palak. Thank you so much. I need to change. हाँ, me too. चलो ठीक है, फिर साथ में 2024 resolution करते हैं to change it, to become morning people. According to comfort zone, break लेकर. हाँ, breaks are also very important. I get up early, still can't study in morning. Same, same. Two things I cannot do is wake up early and also exercise. Exercising is like very important for a lot of reasons, and it's like very difficult. Morning, evening, noon, every time. Oh,
ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो आई विल कम अप विद शेड्यूल, ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए, मे बी डिफरेंट शेड्यूल्स जो कि आई पोस्ट इन अ प्रेजेंटेशन और वी कैन डिस्कस ऑन इट। एंड आई ऑल्सो चेक कि आप उस चीज को थोड़ा फॉलो भी करें, with breaks, with everything, with maybe YouTube playlists. Exercising is also important, relaxing is also important. Watching K-dramas is also very important. It helps you grow some standards, no? चलो ठीक है। Ma'am, I'm comfortable with both the schedule, but none of them is consistent. ये consistency is the key. थोड़ा थोड़ा ही सही, आप थोड़ा थोड़ा ही करोगे ना तो फिर वो नॉर्मल होते जाएगा। You have to do it. आधा घंटा, 1 घंटा पुश करते करते करना तो होगा। एंड प्लस करते करते व्हेन यू ट्राई टू स्टडी और जब आप एक बार पढ़ने लग जाओ तो सब्जेक्ट अच्छा बन जाता है। लाइक इवन फॉर मी, मुझे पहले स्टार्टिंग में रिसर्च बिल्कुल पसंद नहीं थी ड्यूरिंग बैचलर्स। मेरी प्रोफेसर भी टू बी ऑनेस्ट पढ़ाती नहीं थी, तो आई डेंट लाइक द सब्जेक्ट, आई हेटेड इट। बट जब मेरे को ये समझ आने लगा एंड आई यूज्ड टू फॉलो अमित सर क्लासेस, और जब मेरे को समझ आने लगा देन तो फेवरेट, तो इट हैपेंस। Ma'am, I need some guidance about the thing that I was prepping the objectives of research. So basically, as they are in the MCQs form in the exam, so when I go through, I look up at the important pointers, but I do read the whole notes. So like, do we have to read the whole notes to prep or the only important from the notes for exam? I mean, if it could help. I would say, Deepika, that you should understand the concept. पहले आप सब कुछ रीड करो, नोट्स उन्हीं चीजों का बनाओ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एक चीज का नोट्स बनाने लग जाओगे तो वो ऑनेस्टली इज अ टाइम वेस्ट। तो मेक नोट्स एग्जाम के टर्म्स पर्सपेक्टिव में भी जो कि इम्पोर्टेंस है, और रिविजन के लिए उन नोट्स को ही पढ़ो। लेकिन इनिशियली इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बेस, यू नो गो थ्रू एवरीथिंग जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप बस लेक्चर्स को फॉलो करो एंड यू विल डू गुड। बिकॉज ये लेक्चर्स जो सारी फैकल्टीज प्रिपेयर करते हैं, ये हम सारे एग्जाम्स को ही व्यू पॉइंट पे रख के करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, क्या लगता है किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, वी कवर द होल थिंग। ओके, या सो डू फॉलो दैट। एंड नोट्स में एक एक चीजें जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन जरूर लिखो। एंड देन फॉर रिविजन यूज योर नोट्स। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो आपको पावर विदिन से नोट्स प्रोवाइड होते हैं वो तो आपके हैं ही, लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाने की भी हैबिट डालो। और किसी और से नोट्स मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई थिंक वो लोग जो कि सबसे नोट्स मांगते रहते हैं, मुझे नोट दे दो, मुझे नोट दे दो, आई डोंट थिंक वो पढ़ते हैं। बिकॉज आप जब अपने नोट्स बनाओगे ना तो वो आपका तरीका अलग होता है। मेरे नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे और आपके नोट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, राइट? आई वॉच ब्रिजर्टन टुडे। ओके, ब्रिजर्टन, इज दैट नाइस? शुड आई नोट इट डाउन? I am looking for some recommendations. Is it a K-drama? Is it an American sitcom? What is it? I haven't heard. Yes. Okay. Oh, all right. Okay. I will definitely look into it. The last thing I watched, the last was probably like, ma'am, I'm non-psychology student. Can you suggest me any reference book? For basics, for starting up, you can go with Introduction to Psychology, or you know what, you can, if you're like looking for the very base, I would say study 11th 12th class NCERT। बिल्कुल पतली पतली किताबें हैं, आप मतलब कि सैटरडे संडे में खत्म कर जाओ, इतनी बेसिक और बट बेसिक लेकिन बहुत अच्छे से बताई गई और बिल्कुल कम शब्दों में। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। उसके बाद सिसरेली, सिसरेली प्रोनाउंसिएशन या चिचरेली, कुछ चिचरेली बोलते हैं कुछ सिसरेली बोलते हैं, बट वो किताब भी बहुत अच्छी है फॉर बिगिनर्स, फॉर स्टार्टिंग। इट्स अ पीरियड शो, ओके, all right, Palak. Like about the old dating period times. Okay, when Queen Charlotte was alive. Okay, okay. So it's about old dating queens. All right. It's British. Okay. All right. I will definitely look into it. I'll let you know if I like it. Okay. चलो, आज काफी डिस्कशन हो गया। नाउ लेट्स delve into the chapters. 18 again. ये recommendation, I have heard this so many times from so many people to watch 18. Moment of 18 भी इसी को बोलते हैं क्या? So many times to watch 18 again and I haven't. I feel like my friends might come to my place and beat me up because I really have ignored them. Okay, that is one good recommendation. अब देखूंगी देखूंगी। All right. Thank you, Siddhi. चलो
शुरू करते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। तो हम आ चुके हैं अब पार्ट बी पे अपने। अब हमारे पास क्या रह गया है करने को, वी विल बी डूइंग द रिसर्च डिजाइन्स एंड मेथड्स। हमने स्टेप्स पढ़े थे, हमने ये जाना कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है, फ्रेमवर्क होता है। पर रिसर्च डिजाइन भी कई तरीके के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होता है, कोरिलेशन होता है, और ये होते क्या है ये सारी चीजें करेंगे। प्लस कैसे इन्हें फॉलो करना होता है, इनके अंदर सब टाइप्स क्या है, इनकी स्टडी कैसे होती है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में क्या एक ही पैटर्न चलता है या फिर इंडिविजुअल अपने अप्रोचेस निकालते हैं। ये सारी चीजों की तरफ अब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पैराडाइम्स करेंगे रिसर्च के, ठीक है। वील डू रिसर्च पैराडाइम्स। तो चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, तो रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम का मतलब ही होता है एक कंस्ट्रक्ट, एक पैटर्न या मॉडल। जैसे इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। जितने भी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, नॉर्म्स है टू मेंटेन दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जरूरी है, सब बाउंडेड है, A to Z जितने सिटीजन्स हैं, मैं आप, कोई भी स्टेट में, कोई भी यूनियन टेरिटरी में, हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से रिसर्च में भी पैराडाइम होता है जिसको रिसर्च में हमें फॉलो करना होता है। अब इसकी क्या जरूरत है? सी, बहुत अलग लोग हैं, अलग अलग रिसर्चर हैं। अब अगर सब अपने अपने खुद के नए नए तरीके निकालने लग जाए, अगर सब अपने तरीकों से बिना किसी प्रॉपर डेफिनेशन के रिसर्च करने लग जाए, तो फिर उसे समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ रिसर्च करोगे, मैं कुछ अपने तरीके लगाऊंगी, फिर आपस में अपनी नॉलेज को हम स्प्रेड कैसे करेंगे? नॉलेज आगे बढ़ेगी कैसे, शेयर कैसे होगी, बनेगी कैसे? पॉसिबल ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए पैराडाइम का होना हर चीज में, हर फील्ड में, एक पैराडाइम का होना, प्रिंसिपल्स का होना, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स का होना, एक पैटर्न, एक मॉडल, एक कंस्ट्रक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। तो रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? ये यही कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि अब हम रिसर्च करेंगे तो वो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किस तरीके से रिसर्च किया जा सकता है, किस तरीके से थ्योरीज को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये होता है रिसर्च पैराडाइम। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बताता है कि क्या प्रिंसिपल्स हर एक सिटीजन को फॉलो करने हैं, क्या प्रिंसिपल से सभी बाउंडेड हैं, वैसे ही पैराडाइम रिसर्च में बताता है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से कीज हैं, कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि सबको, रिसर्चर्स को फॉलो करने हैं। दैट इज रिसर्च पैराडाइम, ठीक है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या, तो ये क्या करता है? ये हमें एक क्लियर आउटलाइन देता है हमारे पाथ का, जिसे हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, दैट इज हमारे टॉपिक के बारे में भी। तो रिसर्च पैराडाइम की वजह से प्लस हमें और क्लियरिटी भी मिल जाती है। अगर रिसर्च पैराडाइम ना होता तो कितनी खिचड़ी बन जाती। अगर सब कोई अपने अपने तरीके निकालते, तो पहले तो किस तरीके से करेंगे ये भी सोचना पड़ता, कितनी अनक्लैरिटी रहती, कितनी कंफ्यूजन रहती, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती, जबरदस्ती की चीजों में chaos बन जाता, ठीक है। तो एक सेट ऑफ रूल्स का होना जरूरी है जिसको कि एक रिसर्चर फॉलो कर सके, जिससे कि रिसर्चर अपनी रिसर्च खुद भी समझ सके, ठीक है। तो दैट इज रिसर्च पैराडाइम। ये हमें बताता है, ये एक सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करनी होती है, जो कि एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है हमारी रिसर्च के लिए, एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये रिसर्च पैराडाइम दिया किसने था, ये सवाल आता है। किसने दिया था? थॉमस कुन ने दिया था। ये जो पर्सन को आप देख सकते हैं, हाँ, ओ, एक सेकेंड, ये दिस पर्सन है, ये है थॉमस कुन। इन्होंने दिया था रिसर्च पैराडाइम। और प्लस रिसर्च पैराडाइम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक तो कि सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिफाइन कर रहे हैं किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी डिसिप्लिन को, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो रिसर्च पैराडाइम की डेफिनेशन तो इन्होंने दी थी, पैराडाइम के बारे में तो इन्होंने बताया था, और अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस में इन्होंने इस चीज का जिक्र करा था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई थी, वो थी पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। ये रहा पैराडाइम शिफ्ट।
पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ना, एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। समय के साथ, एक तो ये पेन बार बार ना, हाँ, समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि पहले के टाइम पे ये बिलीव था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। पहले ऐसा माना जाता था कि द अर्थ इज फ्लैट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर स्टडी हुई, साइंस आगे बढ़ी और हमें क्या पता चला कि अर्थ फ्लैट है। नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। तो हमारा पहले क्या वर्ल्ड वाइड व्यू पॉइंट था, सब जगह यही माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन धीरे धीरे उस पे जैसे स्टडी होती गई तो हमें पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो बिलीफ था, जो पहले कुछ और था और अब कुछ और है, तो ये जो शिफ्ट हुआ इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। फैक्ट, फन फैक्ट, आपने गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, जिन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स का किस का लाइक पता करा था थ्रू हिज टेलीस्कोप, जुपिटर एंड ऑल के बारे में। तो वो ही वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये बात कही थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है। और ये बात कहने के लिए उन्हें अराउंड 10 साल के लिए हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया था, बिकॉज उस समय क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स बहुत स्ट्रांग थे। और ये कह के उन्हें एक एक तरीके से उन्हें अपोज करा था, क्रिश्चियनिटी एंड कैथोलिक को अपोज करा था उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसलिए उन्हें अराउंड 10 साल के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था। एंड फिर उनके बाद इसी हाउस अरेस्ट के ड्यूरेशन में ही उन्हें उनकी डेथ भी हो गई। तो कोई ऐसी चीज जो उस समय इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, इतनी ज्यादा मतलब कि उस पे क्वेश्चंस उठ गए, किसी को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया इस चीज को अपने आइडिया प्रपोज करने के लिए, और अब वो चीज बिल्कुल ही कॉमन है, बिल्कुल ही एक्सेप्टेड है। तो दिस इज पैराडाइम शिफ्ट। जब समय के साथ, रिसर्च के साथ, साइंस के साथ आइडियाज जो हैं वो डेवलप होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और। जैसे पहले एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था। फिर क्या हुआ, फिर कुछ साल अराउंड 50-60 ईयर्स पहले साइंटिस्ट ने एटम्स को भी और एक्सप्लोर करा और उसमें देखा कि नहीं, एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और करेंटली मॉलिक्यूल्स को सबसे छोटा सब्सटेंस, सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है। हो सकता है कल को और स्टडी हो जाए, मॉलिक्यूल्स को भी ऐसे फाड़ के देखे, उसमें से भी और चीजें निकल आ जाए, हु नोस। तो फिर वो क्या होगा, अगेन पैराडाइम शिफ्ट। पहले कुछ बिलीव था, अब कुछ और है, इसमें चेंज हो गया। वर्ल्ड वाइड व्यू पॉइंट में चेंज आया, दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, जैसे यहाँ ये बोल रही है, ओ वाओ पैराडाइम शिफ्ट। ये क्वेश्चन है ना, पहले मुर्गी निकला या चूजा निकला, अंडा अंडा आया या मुर्गी आया, सो समथिंग लाइक दैट। पहले कुछ और, अब कुछ और हो गया, दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट। ये निकल गई अंडे से बाहर, अब पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, व्यू पॉइंट चेंज हो गया। इसके लिए पहले अंडे की दुनिया कुछ और थी, बंद बंद, लेकिन जब ये बाहर आके निकली तो इसे दिख गई एक बड़ी सी दुनिया। तो इसके लिए क्या हो गया, व्यू पॉइंट में चेंज आ गया। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड के ओपिनियंस में जो वर्ल्ड वाइड व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनमें जब चेंज आता है, दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। तो आई थिंक पैराडाइम शिफ्ट तो बिल्कुल अब क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी थॉमस कुन ने ही दिया था। ठीक है, इनका नाम अगर याद करने में ऐसे दिक्कत होती है तो फिर आप कुन साउंड्स लाइक कूल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी है बहुत कूल, तो यू कैन रिमेम्बर इट लाइक पैराडाइम किसने दिया था जो कि बहुत कूल था। कूल कौन है, थॉमस कुन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो। अ, फिर इसके बाद पैराडाइम जो है, इनके 4 पिलर्स भी हैं। दैट इज, ये लाइन फ्यूज हो गई है यहाँ पे, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इनके बारे में हम आज देखेंगे, प्लस इसके टाइप्स भी देखेंगे पैराडाइम्स को। तो पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट क्लियर होगा। देखो ये एक एग्जांपल है क्यों पैराडाइम का होना जरूरी है। अगर पैराडाइम नहीं होगा, अगर कोई रूल्स, अगर कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, सब कोई अपना ओपिनियन अपने तरीके से अगर रिसर्च करने लग गए तो कुछ ऐसा chaos बन जाएगा। ये एक एलिफेंट खड़ा है, एक हाथी खड़ा है और बहुत सारे लोग हैं, सब अपना ओपिनियन रख रहे हैं। किसी एक पर्सन के हिसाब से ये क्या है, इट्स अ स्नेक, एक सांप है, उसकी सूंड को देख के ये बोल रहा है कि ये सांप है। कोई बोल रहा है इट्स अ स्पेयर, कोई बोल रहा है इट्स अ फैन, मे बी ऊपर बैठ के उसको हवा लग रही होगी इसलिए इट्स अ फैन। इन महाशय को दिख रहा है इट्स अ वॉल, यहाँ पे कोई खड़ा है, सारे अंधे लोग, मत एज इन पट्टी बंधी हुई है, इट्स अ ट्री। कितना केओस हो रहा है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे किसी ने इसकी
टेल को पकड़ के बोला है कि इट्स अ रो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर पैराडाइम नहीं है, अगर कोई एक कंस्ट्रक्ट नहीं है, अगर कोई एक प्रिंसिपल नहीं है फॉलो करने के लिए, तो सारे लोग ऐसे ही ब्लाइंड हो जाएंगे, अपने अपने बातें रखेंगे और कितना chaos हो जाएगा। कैन यू सी द इमेज, इट्स अ रो, ठीक है। ये पर्सन कहाँ, ये रहे पर्सन, सारे सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि कोई एक कंस्ट्रक्ट नहीं है हमारे पास फॉलो करने के लिए। तो अगर पैराडाइम नहीं होगा, तो ये एक सिंपल सी चीज, जहाँ एक हाथी खड़ा है, ये हाथी भी देखो इमेज में बेचारा कितना ऑफेंडेड सा ये दिख रहा है, देखो गुस्से में कि हाँ कर लो, तुम हरकतें कर लो पहले, बेचारा हाथी। तो दैट इज व्हाई पैराडाइम इज नीडेड, अ कंस्ट्रक्ट इज नीडेड, ठीक है। ओके, अब रिसर्च पैराडाइम क्या होता है हम समझ गए, एक पैटर्न, एक मॉडल, एक कंस्ट्रक्ट की प्रिंसिपल्स जो हमें बता रहा है कि हम प्रैक्टिकलिटी कैसे कर सकते हैं, रिसर्च को कैसे प्रैक्टिकल सेंस में एक्चुअली में किया जा सकता है, कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ पिलर्स हैं जिनसे कि ये रिसर्च पैराडाइम बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये पिलर्स क्या हैं, तो एक है मेथोडोलॉजी, फिर है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेथोडोलॉजी वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके थ्रू हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया, या फिर कोरिलेशन डिजाइन हो गया, या फिर हर्मेनॉटिक्स हो गए, मतलब कि जो ग्रंथ वगैरह होती हैं, जो बाइबल्स हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ के उनसे मतलब निकालना, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च। तो किस तरीके की रिसर्च को एग्जैक्टली यूज किया जा रहा है, दैट इज मेथोडोलॉजी। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, क्या हम केस स्टडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सर्वेज कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मेथोडोलॉजी हमें बताता है कि हमने जो टॉपिक लिया है उस एरिया में क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करना बेस्ट रहेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में भी इसे डिस्कस करेंगे। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी बताता है कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज रियलिटी। अगर अर्थ है तो क्या वो राउंड है या फिर वो फ्लैट है, अर्थ है कैसी, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज रियलिटी। ये ऑन्टोलॉजी है, ठीक है, जो कि हमें बता रहा है कि रियलिटी का नेचर क्या है, क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, सच आखिर है क्या। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी बताता है कि हमने अब रियलिटी का पता कर लिया, लेकिन ये हुआ कैसे, जो ज्ञान है और जो ज्ञानी है, उन दोनों के बीच का ये जो गैप था, ये कैसे रिलेशनशिप था, ये आखिर बना कैसे, हमें कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है या फ्लैट है, हमें कैसे पता कि भगवान है नहीं है। दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, जो स्टडी कर रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड द नोन, दैट इज जो फैक्ट है, जो ज्ञान है, और जो जिसके पास वो नॉलेज है, उनके बीच का रिलेशनशिप। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी स्टडीज एथिक्स, वैल्यूज, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें रिसर्च में फॉलो करने होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है रिसर्च का, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एथिक्स फॉलो करने होते हैं, जो वैल्यूज होती है, उसकी बात कौन करता है, एक्सियोलॉजी। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। तो इन्हें डिटेल में देखने से पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैम व्हाट आर द आवर्स, लाइक व्हेन टू, व्हेन एज इन थॉमस कुन, दैट्स हिज बर्थ डेट। आई एम नॉट श्योर आई गॉट योर क्वेश्चन, आर यू आस्किंग कि एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग। वेल, एग्जाम्स में डेट नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नो, जो पीरियोडिकल चीजें होती हैं जिनकी डेवलपमेंट ऑन अ कॉन्टिनम हुई है, उनकी डेट्स नहीं पूछी जाती, ओके। आज तक तो नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी जाएंगी। आई मीन यस, दिसंबर में हुआ था यूजीसी नेट के पेपर में, सिगमंड फ्रॉइड की बर्थ डेट पूछ ली, विच वाज वेरी एक्सेप्शनल, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज है, एक बार हुआ, दोबारा अभी जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, ना ही मतलब बनता है पूछने का, क्या, डोंट वरी। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर मी दैट, आई विल ड्रिंक वाटर वाइल मीनवाइल।
व्हाट डू यू थिंक, क्या भगवान होते हैं? यस, डेफिनेटली होते हैं। ओके, इट्स सब्जेक्टिव। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, yes or no, Ishita? Controversial topic, definitely. But I'm just asking your opinion. What would you say? Yes or no? Yes. Okay. Okay. I'd say yes. In my opinion, yes. It's not in physical form, but maybe in energy. Okay. Yes. Some superpower exists. Don't know if it's God. All right. Okay. Okay. So the answer is like yes or no. Okay. Theist or atheist. So ये क्वेश्चन क्या हुआ? This is ontology. Ontology basically says कि क्या रियलिटी है, और रियलिटी जो है या तो एक सिंगल रियलिटी हो सकती है या मल्टीपल रियलिटीज होंगी, या कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कि या तो रियलिटी होगी या नहीं है। ठीक है, यस और नो। जैसे गॉड है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं? अब बहुत लोग हैं जिन्होंने यहाँ लिखा यस, बहुत लोग का था कि कोई सुपर पावर है बट आई डोंट रियली नो अबाउट गॉड। तो इट्स अ यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। या तो किसी के लिए किसी की रियलिटी होगी कि हाँ भगवान होते हैं, और किसी की रियलिटी होगी कि नहीं भगवान नहीं होते हैं। यस और नो। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट ऑन्टोलॉजी स्टडीज, कि रियलिटी क्या है, क्या भगवान है या भगवान नहीं है, क्या अर्थ फ्लैट है, अर्थ फ्लैट नहीं है, क्या दिन है रात है, जो रियलिटी क्या है, आखिर रियलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, ये कौन स्टडी कर रहा है, ये कौन सा पिलर है, ये है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, या तो एक सिंगल रियलिटी है कि मतलब हाँ भगवान है या नहीं है, या मल्टीपल रियलिटीज होंगी कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सब्जेक्टिव है, ऑल दैट, या फिर कोई रियलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। मतलब कि देयर इज नो रियलिटी, या तो है या तो नहीं है, या फिर कोई रियलिटी होगी ही नहीं। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑन्टोलॉजी से। ठीक है, तो ये एक पिलर है। किसका पिलर है? रिसर्च पैराडाइम का पिलर है। क्या नाम है इसका? ऑन्टोलॉजी। ये स्टडी कर रहा है कि रियलिटी क्या है, आखिर जो रियलिटी है, जो सच है, वो आखिर है क्या, उसका नेचर कैसा है, उसका मतलब क्या है, रियलिटी है कैसी, क्या है, एग्जिस्टेंट, रियलिटी, बीइंग, बिकमिंग, ये सारी चीजें। और ऑन्टोज ये जो टर्म है, इसका मतलब ही होता है बीइंग। तो वी आर बेसिकली स्टडीइंग द बीइंग, व्हाट इज द बीइंग, व्हाट इज द रियलिटी। ठीक है, अब ये जो ऑन्टोलॉजी है, ये दो तरीके की होती है। वेयर शुड आई राइट इट? वह है, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी। ऑन्टोलॉजी, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है रियलिज्म, रियलिज्म, और एक होती है रिलेटिविस्ट, रिलेटिविस्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? तो रियलिज्म ऑन्टोलॉजी जो है, वो कहती है कि जो भी सच है, वॉट एवर द रियलिटी इज, अगर भगवान है या भगवान नहीं है, ये सारी चीजें हम रिसर्च के थ्रू पता कर सकते हैं। साइंस ही हमें इकलौता सोल्यूशन है जो कि हमें रियलिटी के बारे में बता सकती है। अगर साइंस के अकॉर्डिंग कुछ आया तो वही सच है, अगर नहीं आया, अगर साइंस कह रहा है कि ये सच नहीं है, तो वो सच नहीं है। जैसे आपके घर में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बहुत आर्ग्यू करते होंगे, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बस उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वो बात पत्थर की लकीर, मतलब बिल्कुल ये फैसला मैंने सुना दिया, यही होगा। बहुत लोग होते हैं जिनसे अगर आप कुछ बोलो कि नहीं, फोन के सिस्टम की बात कर लो कि कैमरा ऐसे खुलता है, तुम्हें क्या पता है, मैं बताऊंगा, यही है तो यही है, साइंस ऐसा ही कहता है, या फिर जो भी इनके लॉजिक रीजनिंग आएंगी, वो आपसे नहीं सुनेंगे, कोई और पॉइंट आपका नहीं सुनेंगे। तो उसी तरीके से रियलिज्म में भी होता है कि रियलिज्म ऑन्टोलॉजी कहती है कि जो भी सच है, जो भी रियलिटी है, अगर भगवान है तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के थ्रू ही पता चलेगा। और अगर साइंस ने कह दिया कि नहीं भगवान नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि भगवान नहीं है। वेराज रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी, रिलेटिविस्ट कहते हैं कि सबका एक, हम एक पर्टिकुलर रियलिटी में सीमित नहीं रह सकते, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। किसी के लिए भगवान होंगे, किसी के लिए भगवान नहीं होंगे। कोई ऐसे लोग होंगे जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बिलीव करें,
कोई ऐसे होंगे जिनका बिलीफ कुछ और होगा, हो सकता है मेरी रियलिटी कुछ और हो और आपकी रियलिटी कुछ और हो, आपका मानना कुछ और हो, मेरा मानना कुछ और हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ और आप सही हो और आप सही हो मैं गलत हूँ। रादर हम सबकी अपनी अपनी एक रियलिटी है। तो ये चीज कौन एक्सेप्ट करता है? दिस इज सेड बाय रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी, ठीक है। तो रियलिज्म क्या कह रहा है? रियलिज्म कह रहा है कि जो है सो वो साइंस है, साइंस ने बोल दिया 100% उसका रिजल्ट आ गया। रिलेटिविस्ट कहता है कि कई सारी रियलिटीज हो सकती हैं, आपकी कुछ और, मेरी कुछ और, किसी और की कुछ और, पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज का होना पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें भी रियलिज्म के दो टाइप होते हैं। रियलिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है नेव रियलिज्म, नेव, और एक है क्रिटिकल, क्रिटिकल। अब ये क्या होता है? नेव रियलिज्म कहता है ये बिल्कुल और भी एक लेवल फर्दर सिर्फ साइंस पे ही बिलीव कर रहा है, जो कि रियलिज्म की बात थी कि जो साइंस ने कहा वही कह दिया, बिल्कुल उसी बेस पे बना हुआ है कि साइंस ने बोला कि ये चीज यही रियलिटी है तो वो रियलिटी हो गई, नेव है बिल्कुल। और वेराज अगर साइंस ने कह दिया कि ये चीज नहीं है तो ये चीज नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं। साइंस इज 100% करेक्ट अकॉर्डिंग टू नेव, 100% करेक्ट होती है साइंस, ठीक है। जो साइंस ने बोला दैट इज इट, जो रिसर्च ने पाया गया दैट इज इट। वेराज क्रिटिकल रियलिज्म कहता है कि ठीक है, साइंस से हमें रियलिटी का पता तो चलेगा, साइंस इज द फाउंडेशन, थ्रू रिसर्च हम रियलिटी का पता लगाएंगे, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन बिकॉज ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स है, हम इतने डायनेमिक बीइंग्स है, हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने सारे हैं कि साइंस 100% नहीं वर्क कर सकता। इसीलिए हम अभी भी रिसर्च जब करते हैं तो जब भी कोई रिसर्च होती है तो उसमें अप टू 5% एरर एक्सेप्टेड होता है। मतलब कि आपने रिसर्च करी और जो टूल्स वगैरह टेस्टिंग हुई इसमें पाया गया कि लेट्स से 4% आपका जो डेटा था वो किसी चांस की वजह से आया, किसी एरर की वजह से आ गया, कोई सेकेंडरी फैक्टर की वजह से, जो हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में पढ़ा था, तो किसी उन रीजन की वजह से आ गया। तो अप टू 5% ये चीज एक्सेप्टेड होती है। क्यों एक्सेप्टेड होती है? बिकॉज क्रिटिकल ऑन्टोलॉजी रियलिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म पे ही आते हैं कि साइंस जो है वो 100% बता ही नहीं सकता, 5% के लगभग एरर चलेगा, चलता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आपस में बहुत डिफरेंट है, बहुत डायनेमिक है, और साइंस को एग्जैक्टली हर सब्जेक्टिव चीज को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, ठीक है। तो क्या हो गया? क्रिटिकल रियलिज्म क्या हो गया? ये वो ऑन्टोलॉजी हो गई, रियलिज्म की ऑन्टोलॉजी हो गई जो कि कह रही है कि यस, यहाँ पे साइंस जो है अप टू से 95% जो है वो साइंस ही है, साइंस ही बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। बट सिर्फ साइंस ही बेस है ऐसा नहीं है, सिर्फ साइंस के थ्रू ही हम सारी नॉलेज जान सकते हैं ऐसा भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स में एरर्स होना जाहिर सी बात है, कॉम्प्लिकेशंस होना जाहिर सी बात है। तो जो है सो साइंस है, ये भी चीज नहीं है। यस, साइंस इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, बट वहीं पे चीजें खत्म हो जाएंगी, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। क्या हो गया ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी हो गया जो रियलिटी की स्टडी कर रहा है, व्हाट इज रियलिटी, ठीक है। और ऑन्टोलॉजी दो तरीके की होती है, रियलिज्म एंड रिलेटिविस्ट। रियलिज्म कह रहा है कि जो सच है वो हम साइंस के थ्रू ही पाएंगे, जो रियलिटी है साइंस हमें बताएगी। रिलेटिविस्ट कह रहा है कि सबकी अपनी अपनी रियलिटी है, किसी की कुछ, किसी की और कुछ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सही हूं तो आप गलत हो जाएंगे, मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर मेरे लिए भगवान होते हैं तो आपके लिए भगवान नहीं भी हो सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज ट्रू, सबकी अपनी अपनी रियलिटी है। रियलिज्म के फर्दर दो टाइप होता है, एक होता है नेव और एक होता है क्रिटिकल। नेव आपके घर के वो बड़े बुजुर्ग, रिलेटिव, बच्चे, वो लोग हैं जो कि किसी और की नहीं सुनते, अपनी बोल दी तो बोल दी, मतलब साइंस ने बोल दी तो बोल दी। और क्रिटिकल थोड़े अंडरस्टैंडिंग, जो कि कह रहे हैं साइंस को हम लेके चल रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ साइंस ही सारी चीज बता दे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑन्टोलॉजी समझे यहाँ तक? ओके, काफी क्वेश्चंस, एक सेकेंड। Ma'am, my answer is not fixed, it's controversial. Okay. If the epistemology you said that is the relationship between the inquirer and what is the known, so can we say it is IV-DV relationship of research?
यू आर नॉट बॉदरिंग मी एंड नो इट इज नॉट आईवीडीवी, इसलिए बिकॉज हम यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सीख कर रहे हैं ना कि कैसे क्या ज्ञान है और कैसे किसी को पता चला उस ज्ञान के बारे में। हम अगर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं यहाँ किसी भी तरीके की, तो वो जरूर हो जाता है आईवीडीवी रिलेशनशिप। एंड इट्स इंटरेस्टिंग दीपिका कि आप यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स को ला रहे हो, अच्छी बात है आप ला रहे हो, इट मीन्स कि आप पढ़ाई कर रहे हो तभी क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड। cognitive dissonance, cognitive dissonance for what? For realism. Is there any single reality concept in realism? Yes, naive realism में है। That is what naive realism is saying ना, कि साइंस ने जो कह दिया, जो रियलिटी साइंस ने दे दी वही हो गई। और रियलिज्म में भी इनफैक्ट रियलिज्म की यही बात है कि एक ही रियलिटी है जो साइंस के थ्रू में पता चल रही है, और रिलेटिविस्ट कह रहा है कि मल्टीपल रियलिटीज हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तक क्लियर है। क्विक समरी, ओके, क्विक समरी। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी कहता है कि व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं ऑन्टोलॉजी में कि आखिर सच क्या है, रियलिटी क्या है। ऑन्टोलॉजी रियलिज्म हो सकती है, रिलेटिविस्ट हो सकती है। रियलिज्म कहता है कि एक रियलिटी है जो हम साइंस के थ्रू पता कर सकते हैं, साइंस के थ्रू जो रियलिटी आ गई वही रियलिटी है। रिलेटिविस्ट कहता है कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, मेरी रियलिटी कुछ और होगी, आपकी रियलिटी कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी, पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। ठीक है, भाईचारा मेंटेन हो रहा है यहाँ, रिलेटिविस्ट। ठीक है, और रियलिज्म में फिर फर्दर दो टाइप होते हैं, नेव और क्रिटिकल। नेव बोल रहा है कि 100% साइंस की बात है, साइंस के जो रियलिटी आ गई बस अब वही रियलिटी एप्लीकेबल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, सच वही है जो रिसर्च ने कह दिया, बात खत्म। क्रिटिकल रियलिज्म कह रहा है कि यस, रियलिटी एक है जो हमें रिसर्च के थ्रू पता चल गई, बट रिसर्च सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता, ह्यूमन बींग्स हम बड़े अनोखे हैं, तो उनको पढ़ के पूरा सब्जेक्टिव चीज को कोई ऑब्जेक्टिवली कैसे बता सकता है। ठीक है, तो साइंस हमें आंसर देगा लेकिन कंप्लीट आंसर्स नहीं देगा। ठीक है, अब तो क्लियर होगा। अब थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो ऑन्टोलॉजी जब हम ट्रेस करें कि सबसे पहले ऑन्टोलॉजी की ब्रांच को किसने उठाया था, किसने इस कलर की फाउंडेशन करी थी, तो दैट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का तो नाम आपने सुना होगा सिस्टम्स एंड थ्योरीज में। बेसिकली इन्होंने एम्पिरिस पे, ये मोनिस की बात करी है, बहुत सारे व्यू पॉइंट दिए इन्होंने, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के बारे में, फिलोसफर थे ये, काफी इन्होंने बातें करी है। तो ऑन्टोलॉजी की भी स्टडी एरिस्टोटल के बुक में ट्रेस की जाती है। हालांकि इस चीज पे भी काफी डिबेट हुई है, काफी लोगों का कहना है कि एरिस्टोटल की एग्जिस्टेंस से भी काफी पहले इंडिया और चाइना, यहाँ पे भी ऑन्टोलॉजी की स्टडी पाई गई है, पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप भगवत गीता की बात करो जो कि आज से 5000 साल पुरानी है या मे बी उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो वहां पे भी रियलिटी की स्टडी की गई है, वहां पे भी ये सवाल कि व्हाट इज रियलिटी ये पूछा गया है। तो इट कैन बी ट्रेस्ड इवन बैक, ये डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी इज क्लियर, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा पिलर। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है, हमने रियलिटी पता लगा ली, ठीक है, हमें पता चल गया भगवान होते हैं, कैसे पता चला होते हैं, तो हाउ डू वी नो द रियलिटी, हमें कैसे पता चला कि सच क्या है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। कि जो नॉलेज है और हमें कैसे पता कि ये नॉलेज है, इसकी स्टडी करना, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ये ऐसे सवाल पूछता है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट, हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि भगवान है या फिर भगवान नहीं है। तो ये उन एक्सटेंट्स पे फोकस करता है कि कैसे हमने ये नॉलेज जो हमने रियलिटी क्रिएट करी, इसकी वैलिडिटी हमने कैसे फाउंड करी, का कैसे एक्सटेंड, किस किस तरीके से हमने इस नॉलेज को गेन करा। तो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है हमारे पास, और जो नॉलेज जिसको मिली और उसने कैसे ली, तो ये जो चीज का डिफरेंस है, इसको कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है, इसको कौन स्टडी कर रहा है, ये एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी हो रही है। ठीक है, मतलब कि जो भी रियलिटी हमने पता लगा ली, हमने रियलिटी की स्टडी कर ली, हमने एक रियलिटी फाउंड कर ली। अब इस रियलिटी का लेकिन पता कैसे चला, हाउ डिड वी नो कि ये चीज रियलिटी है, कैसे हमें इस कंक्लूजन पे हम कैसे आए, इस नॉलेज पे हम कैसे आए, कैसे पता चला हमें, हाउ डू वी नो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज
यस इट इज अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। नॉलेज कैसे मिली, हम नॉलेज को पढ़ रहे हैं कि नॉलेज हमें कैसे मिली, उसकी समझ हमें कैसे आई, हम उस तक कैसे पहुंचे, अज्ञानी से ज्ञानी बेसिकली हम कैसे बने। जो नॉलेज थी और जो नोअर था, जो जानना चाह रहा था, उसकी अप्रोच क्या रही उस नॉलेज तक पहुंचने में, किस तरीके से उस ज्ञान की प्राप्ति हुई बेसिकली। दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, जिससे कि हमें रियलिटी का पता चला। हमें कैसे पता है रियलिटी का, दैट ये इस चीज को कौन टारगेट करता है, एपिस्टेमोलॉजी। इसके भी टाइप्स हैं। एपिस्टेमोलॉजी भी दो तरीके की होती है। एपिस्टेमोलॉजी होती है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट, एंड सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। एपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो तरीका जहां पे हम लोगों के फैक्ट्स ले रहे हैं, एम्पेरिकल स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिवली हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली हमने नॉलेज को गेन करा, वो हो गई ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी। और सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी क्या हो गई, जहाँ पे हम लोगों के पीओवीज को पढ़ रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ रहे हैं, उनके ओपिनियंस को देख रहे हैं, उनके सब्जेक्टिव मैटर में जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ सब्जेक्टिवली स्टडी हो रही है, लोगों के तौर तरीके को समझा जा रहा है, उनसे उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा जा रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जा रहा है, जहाँ सब्जेक्टिवली हम स्टडी कर रहे हैं। दैट इज क्या, दैट इज सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी बड़ा इजी, छोटा सा। क्या हो गया एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ हाउ वी नो द रियलिटी, हमें कैसे पता कि रियलिटी क्या है, इसकी स्टडी को ही बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अगर अर्थ राउंड है तो हाउ डू वी नो कि अर्थ राउंड है, अगर आपको लगता है अर्थ फ्लैट है तो कैसे पता कि अर्थ फ्लैट है, किस किस बेसिस पे आप उस ओपिनियन तक पहुंचे, दैट स्टडी ऑफ नॉलेज, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। और एपिस्टेमोलॉजी ये दो तरीके की हो सकती है, ये या तो ऑब्जेक्टिव हो सकती है या फिर ये सब्जेक्टिव हो सकती है। ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे हम फैक्चुअल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एम्पेरिकल स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली हम डेटा को डिटरमाइन कर रहे हैं। वेरा सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी वो एपिस्टेमोलॉजी है जहाँ पे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, उनके ओपिनियंस को देख रहे हैं, उनके सब्जेक्टिव मैटर में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी। यहाँ तक क्लियर। ओके, बताओ ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, क्या इन दोनों में कोई डाउट है। क्लियर। मेरे को पता था मेरा अलार्म बजेगा। ऑल सेट, ऑल सेट, ओके, ऑल राइट, ओके। ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, हाँ, ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी टाइप है एपिस्टेमोलॉजी का, जहां पे हम नॉलेज, कैसे हमें नॉलेज का पता चला, क्या जो नॉलेज हमने रियलिटी जो हमने गेन करी वो रियलिटी कैसे करी, इस चीज की स्टडी हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब कि हम या तो एम्पेरिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी। फैक्ट्स की जहाँ पे स्टडी हो रही है, सच एज कोई डेटा कलेक्शन टूल्स के थ्रू हो रही है, ऑब्जेक्टिवली हम डेटा डिटरमाइन कर रहे हैं। yes yes this will be in the downloadable ppt। okay okay, चलो फिर नेक्स्ट मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या होती है, एक और चीज, एपिस्टेमोलॉजी दी किसने थी, ये दी थी फ्रेडरिक फेरियर ने, बढ़िया फ्रेंच टाइप्स नेम है, फ्रेडरिक फेरियर। ये भी आपके उसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, डाउनलोडेबल पीपीटी में, तो डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी वो बेसिकली कि अब हमने पता कर ली रियलिटी, हमने अपनी थ्योरी डिटरमाइन कर ली, अब हम रिसर्च डिजाइन क्या यूज करेंगे, कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा एक रिसर्च को कंडक्ट करने का,
ये कौन बताता है? ये मेथोडोलॉजी बताता है। ये डिपेंड करता है हमारा टॉपिक क्या था, कौन से आइडियाज हमें एक्सप्लोर करने हैं, किस सोशल कंस्ट्रक्ट में, किस सोशल एनवायरनमेंट से हम अपनी नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं, तो कैसे हम डिस्कवरी करेंगे, कैसे हम अपनी रिसर्च को लेके आगे बढ़ेंगे, ये कौन बताता है? ये मेथड बेसिकली कौन दे रहा है? मेथोडोलॉजी दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्चर है, वो देखना चाहता है कि उसने एक प्लान बनाया और वो देखना चाहता है कि इस प्लान के जरिए क्या लोगों के प्रोटीन लेवल्स बढ़ते हैं कि नहीं। तो ये देखने के लिए वो क्या कर सकता है? वो एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर सकता है। वो हो सकता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले, एक कंट्रोल ग्रुप ले। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो अपने ट्रायल को, अपने प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करे। वेराज कंट्रोल ग्रुप में वो कोई ट्रीटमेंट ना दे, कोई प्लान को एडमिनिस्टर ना करे। और उसके बाद वो क्या देखेगा? उसके बाद वो देखेगा कि क्या प्रोटीन के लेवल बढ़े या नहीं बढ़े। और इसके थ्रू वो पता कर पाएगा कि उसका जो प्लान था क्या वो वर्किंग है, नहीं वर्किंग है। ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया। सपोज अब कोई स्टडी कर रहा है ऑन, कोई ट्विन स्टडी कर रहा है, ठीक है। और कि क्या जो ट्विन्स होते हैं वो अगर अलग अलग रहे, अगर अलग अलग वो पल बढ़ रहे हैं, तो क्या उनके इंटेलिजेंस पे कितना असर होता है। तो क्या इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकता है? क्या कोई इंसान एक मदर से उसके ट्विन्स को लेके जबरदस्ती उन्हें सेपरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या जबरदस्ती बच्चों को लेके दो अलग अलग घर में पाला जा सकता है? नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ क्या पॉसिबल होगा? केस स्टडी पॉसिबल होगी। तो ये चीज हमें कैसे, इस मेथोडोलॉजी पे कैसे आएंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो क्या बंदा रिसर्च ही ना करे, रिसर्च करना छोड़ दे? और भी तरीके हैं। कौन बता रहा है इन तरीकों के बारे में? मेथोडोलॉजी बता रहा है। ठीक है। मेथोडोलॉजी बताएगा कि कौन से तरीके हैं, कौन सी रिसर्च डिजाइन, कौन सा फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। किस तरीके से हमने जो रियलिटी की जो थ्योरी बनाई है उसको हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम उसे डिस्कवर कर सकते हैं। क्या टूल्स होंगे जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं? क्या हम सर्वे करेंगे या फिर हमें इंटरव्यू करना चाहिए या फिर हमें कोई क्वेश्चनायर लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें फ्रॉम डेटा कलेक्शन टू डेटा एनालिसिस, उस डेटा को कलेक्ट करने से लेके उसका मतलब निकालने से लेके एग्जैक्टली कौन सा हम उस पर डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोरिलेशन करेंगे या केस स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? जहाँ पे हमारा मोर प्रैक्टिकल वर्क आ जा रहा है। ये किधर किधर से पता चल रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन है इसका पिलर? मेथोडोलॉजी है इसका पिलर। ठीक है। ओके। मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो क्लियर। क्या होती है मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी हमें बता रही है कि हमने जो थ्योरी बना ली, जो रियलिटी हमने पता करी, अब इसकी जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो कौन सी अप्रोच इसके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी, आपके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कौन सी अप्रोच बेस्ट सूटेबल रहेगी, आपको जिस तरीके की पॉपुलेशन को अप्रोच करना है, आप उसमें डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज अगर आपको 1000 लोग का सैंपल चाहिए तो क्या वन बाय वन इंटरव्यू करना सबके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो ये सारी चीजों का आइडिया कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीजें, ये जो पूरे फ्रेमवर्क्स हैं, ये कहाँ बन के रखे हुए हैं? ये मेथोडोलॉजी में बताएगा कि किस तरीके से हम आगे अब रिसर्च को अप्रोच किया जा सकता है, किस तरीके से अब रिसर्च आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो क्लियर। ओके। एक्सियोलॉजी। नाउ ये फाइनल चौथा पिलर है। क्या है ये? एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब ही होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, एक्सियोस। एक्सियोस का मतलब होता है वर्दी, लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो ये स्टडी ही है ऑफ द साइंस ऑफ वर्दी, दैट इज द साइंस ऑफ वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स। मतलब कि एक्सियोलॉजी हमें बताता है कि क्या वैल्यू, किसकी मॉरल वैल्यू सही है, क्या ये रिसर्च करी जा सकती है, क्या इसमें गुडनेस है कि नहीं। हमें लोगों का इन रिसर्च कभी हार्म नहीं करना है। हमें उन्हें उन्हें लाइक बुरा उनके साथ नहीं करना है, उन्हें किसी तरीके की तकलीफ हमें नहीं पहुंचानी है। तो अभी हम कैसे डिफाइन करें कि क्या मॉरली सही है, वेरास क्या मॉरली गलत है? क्या ये किया जा सकता है? क्या इसको करने से सामने जो हमारा पार्टिसिपेंट है, क्या इससे कोई नुकसान भी पहुंचेगा? क्या इस रिसर्च से पूरे वर्ल्ड में कोई नुकसान पहुंचेगा? क्या ये रिसर्च हार्मफुल होगी या फिर ये एथिकल है? क्या ये मॉरल है या फिर ये मॉरल नहीं है?
की जा सकती है, क्या ये गुड है या फिर ये गुड नहीं है, इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में एक्सियोलॉजी बताता है। तो ये वो वैल्यूज है, वो थ्योरीज है जो कि हमें रिसर्च में फॉलो करनी होती हैं। क्या जो रिसर्च का टॉपिक मैंने सोचा है और मैंने जो सैंपल कलेक्शन का तरीका सोचा है, क्या ये एथिकली राइट होगा या नहीं होगा? अब जैसे कि आपने लिटिल एल्बर्ट की स्टडी तो सुनी होगी, लिटिल एल्बर्ट, एल्बर्ट जेबी वॉटसन की, जानते होंगे आप क्या है ये स्टडी? हाँ, तो क्या किया था इसमें वॉटसन ने? इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक छोटे से बच्चे को लिया था और उसमें फोबिया को एस्टैब्लिश करा था, फियर को एस्टैब्लिश करा था। काफी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी रही है ये कंडीशनिंग में। क्या करा था उस बच्चे को? रैबिट से फियर एस्टैब्लिश करा था, व्हाइट फर के थ्रू फियर उसमें एस्टैब्लिश करा था, वो जो कि पहले नॉर्मल था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट साउंड क्रिएटेड, नॉइज क्रिएट कर करके उस बच्चे में फोबिया को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये तो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली में क्या उस बच्चे को जबरदस्ती लिया गया था? क्योंकि इसकी जो मदर थी, लिटिल अल्बर्ट की जो मदर थी, वो उसी सेटिंग में, उसी यूनिवर्सिटी में काम करती थी जहाँ पे वॉटसन की लैब थी, जहाँ वो स्टडी कर रहे थे। तो वो क्या करती थी, वो जिसकी जो मदर थी वो एक वेट नर्स थी। तो उस वेट नर्स से उसके बेबी को एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया गया और इसके ऊपर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं भी कि क्या ये कॉन्सेंजुअल हुआ, क्या उस लेडी से, उस वेट नर्स से उसकी परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी। और बहुत लोग यही कंट्रोवर्सी देते हैं कि वो तो एक वेट नर्स थी, वेराज वॉटसन एक काफी रिनोन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उस बेबी को ले लिया। प्लस एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या उसके बाद उस बच्चे को डिसेंसिटाइज किया गया? क्या उसमें मतलब काउंटर कंडीशनिंग की गई? क्या उस बच्चे में जो डर एस्टैब्लिश किया था, जो फोबिया एस्टैब्लिश किया था, क्या उस फोबिया को दोबारा हटाया गया? क्या उस बच्चे को वापस से नॉर्मल किया गया? नहीं किया गया। तो क्या ये एथिकल था? क्या ये सही था करना? नहीं था करना। इसी तरीके की रिसर्च की वजह से एक्सियोलॉजी का होना जरूरी है। या अनदर एग्जांपल, मॉन्स्टर स्टडी के बारे में आप जानते हैं? Okay. मॉन्स्टर, मॉन्स्टर स्टडी, ये क्या हुई थी? यहाँ पे बेसिकली कुछ रिसर्चर्स थे जो देखना चाहते थे कि क्या अगर बच्चों को ऐसे ही रीइंफोर्स करा जाए या उन्हें बोला जाए कि आप जो है तोतले हो, तो क्या ये बोलते बोलते वो बच्चे एक्चुअली में, जिनकी स्पीच नॉर्मल है, क्या उनकी स्पीच ऐसे बिगड़ जाएगी? क्या वो एक्चुअली में उनकी स्पीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी? ये स्टडी करना चाहते थे कुछ रिसर्चर्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो एक ऑर्फनेज में गए, वहां पे उन्होंने बच्चों को दो ग्रुप में बांटा, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। तो एक ग्रुप के बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे थे, जिनकी स्पीच अच्छी थी, लेकिन उन्हें बार बार ये बोलते गए कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम लड़खड़ा रहे हो, तुम्हारी स्पीच गंदी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर दूसरे बच्चों को नॉर्मली ट्रीट किया गया जो कंट्रोल ग्रुप में थे। और फिर ये देखा गया कि ओवर टाइम जो बच्चे नॉर्मल थी जिनकी स्पीच, लेकिन क्योंकि उन्हें इतना बोल दिया गया कि बेसिकली उनका सेल्फ एस्टीम ही गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया, एंड वो एक्चुअली में लड़खड़ाने लग गए। मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बेचारे बच्चों पे उन्होंने टेस्ट कर दी, और उसके बाद वो बच्चे, उनकी स्पीच खराब हो गई, और स्पीच खराब होने के साथ साथ उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत डाउन हो गया, उनका मोराल भी बहुत गिर गया। और ये स्टडी करने के बाद क्या उनपे कोई क्योर किया गया? नहीं किया गया। इसीलिए ये स्टडी होने के काफी साल बाद तक उन बच्चों पे, क्योंकि बड़े हो गए फिर भी वो कॉम्प्लिकेशंस रह गई, तो इसीलिए फिर जो रिसर्चर्स थे उन लोगों को बोला गया था, फिर पनिश किया गया था कि अब आपको इन जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे जिनके साथ आपने ऐसा किया, उनको आपने एक मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी, कुछ पैसे जो थे उन्हें वो देने पड़े थे। लेकिन क्या पैसे देने से ये चीजें सुधर गई? क्या इतने साल का जो लॉस हुआ, या जो स्पीच का जो लॉस हुआ, वो या वो जो बच्चे जो इस सेल्फ एस्टीम के प्रॉब्लम से गुजरे जस्ट बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट होना था जो कि उन पे स्टडी करी गई, उन्हें बिना बताए पार्टिसिपेंट बनाया गया, उनके साथ ये चीजें हुई, क्या ये किसी भी तरीके से सही था? क्या ये मॉरली करेक्ट था या नहीं था? बिल्कुल नहीं था। नो, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो, ऐसी जो चीजें पहले होती थी, जो स्टडी होती थी, या इवन अनदर एग्जाम्पल, वन इवन मोर सीवियर एग्जाम्पल, पहले बीमारियां जब होती थी, लेट्स से सिफिलिस की बीमारी हो गई किसी को,
ठीक है। तो अब इस पे रिसर्चर्स, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और इससे पहले के टाइम पे क्या अभी भी लोगों की डेथ भी हो सकती है, और पहले तो हो भी जाती थी। तो क्या रिसर्चर्स पहले क्या करते थे कि उन्हें जानना है कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितने टाइम पीरियड एग्जैक्टली में चीजें बिगड़ने लग जाएंगी, या कितने टाइम में इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, या फिर इसका क्या क्योर हो सकता है। तो ऐसे में ये क्या करते थे, जो जिन सोशल स्टेटस जिन लोगों का उस समय कम माना जाता था, जैसे कि जो नेटिव इंडियंस थे या जो ब्लैक पीपल थे, इनको लिया जाता था पार्टिसिपेंट जबरदस्ती, और इनके साथ क्या किया जाता था कि इनको उस डिजीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता था, जिस भी डिजीज से ये पढ़ रहे हो। तो बेसिकली अच्छे खासे हेल्दी इंडिविजुअल्स को लेके उन्हें बीमार कर दिया जाता था, और उसके बाद ये उन पे स्टडी करते थे, देखते थे कि क्या दवाई काम कर रही है, या फिर कितने सीवियर इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितने टाइम तक ये इफेक्ट चल रहा है, और फिर उन्हें वैसे ही मरने की कंडीशन में ही छोड़ दिया जाता था, सिर्फ एक रिसर्च करने के लिए। तो क्या ये चीज किसी भी एंगल से सही थी कि आपने किसी एक अच्छे इंडिविजुअल को लिया और उसके साथ ऐसे ऐसे उसकी लाइफ ही खत्म कर दी? इज दैट करेक्ट इन एनी वे? नो, दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी, इन मेनी लेवल्स दैट वाज हॉरिबल। तो ये चीजें पहले होती थी। रिसर्च में पहले कोई एथिक्स, लॉज, प्रिंसिपल्स नहीं थे। बस रिसर्च होए जा रही थी हर फील्ड में, साइकोलॉजी हो या कोई और फील्ड हो, सब जगह बस हो रही थी। अभी भी इनफैक्ट एनिमल क्रुएल्टी तो होती है, बहुत सारी टेस्टिंग कंपनीज वगैरह एनिमल्स पे करते हैं। होपफुली उसमें भी आगे फ्यूचर में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑल आए। करेंटली तो बस सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं, बट चलो वी कैन होप फॉर इट। तो यही सारी चीजें की वजह से एक्सियोलॉजी का आना जरूरी था, कि पहले जो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी, इनको गाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि इस तरीके की रिसर्च नहीं हो सकती है, दिस इज मॉरली एथिकली रॉन्ग, इसकी वैल्यू नहीं है, लाइक ह्यूमन वैल्यू यहाँ पे डिग्रेड की जा रही है। ये सारी चीज को फाउंड करने के लिए, इसको बताने के लिए किससे लाया गया? एक्सियोलॉजी को लाया गया। ठीक है, तो समझ गए एक्सियोलॉजी क्या होती है? एक्सियोलॉजी इज बेसिकली वो स्टडी या वो पिलर, किसका? पैराडाइम का, जो कि स्टैब्लिश कर रहा है कि क्या वर्दी है, क्या ह्यूमन प्रिंसिपल्स है, क्या मॉरल प्रिंसिपल्स है, क्या एथिकली करेक्ट है, क्या एथिकली करेक्ट नहीं है, उनके बीच की एक जो लाइन है, उसको कौन स्टैब्लिश कर रहा है? एक्सियोलॉजी। कि अगर आपने इस लाइन को क्रॉस किया तो मतलब आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर और चीजें हो सकती हैं, आप पे एक्शंस लिए जा सकते हैं, विच वाज वेरी वेरी नेसेसरी कंसीडरिंग पास में जो चीजें हो रही थी। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सियोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? तो 1902, मतलब देख लो कितने बाद में ये आया है ये कॉन्सेप्ट, 1902, जब बिहेवियरिज्म भी एस्टैब्लिश हो गया, इतने बाद में ये कॉन्सेप्ट पहली बार यूज किया गया, मतलब 1902। इससे पहले क्या हो रहा था? कुछ भी हो रहा था। तो 1902 में पहली बार पॉल लैपी ने और एडवर्ड वॉन हार्टमैन, इन दोनों ने मिलके अब ये टर्म को यूज किया था। पॉल लैपी ने 1902 में किया था, एडवर्ड वॉन हार्टमैन ने 1909 में इस टर्म को यूज किया गया था। ये तो यहाँ पे सिर्फ टर्म यूज हुआ था, इसके बाद धीरे धीरे इस पे डेवलपमेंट हुई है, और इसको फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल फंक्शन में लाया गया, और अभी करेंटली हम एपीए के जो एथिक्स एंड गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, मॉरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से एक रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से आप सैंपल ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइकोलॉजी में क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट है, यहाँ थेरेपीज भी होती हैं, तो थेरेपी की भी गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं कि किस तरीके से एक अच्छा थेरेपिस्ट अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आखिर किस तरीके से कितना डेटा उनसे क्या कॉन्फिडेंशियल रखना है, या फिर ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस, ये वाली चीजें नहीं रखनी है, ज्यादा पर्सनल नहीं होना है, एक थेरेपेटिक अलायंस, एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप ये मेंटेन करना है, वो कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को पर्सनल ही रखना है, ये सारी चीजें भी कौन देख रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? एपीए। तो ये सारी चीजें भी अब आ गई हैं, आ चुकी हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक्सियोलॉजी में किसी को यहाँ तक इन चारों पिलर में, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथोडोलॉजी में कोई भी डाउट? सो एक्सियोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक इम्पोर्टेंट या किसी दूसरे को छोड़ा जा सकता है, चारों ही पिलर है, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट्स है हमारे पास, तो अब हम टाइप भी एक टाइप तो कर ही सकते हैं, है ना? हाँ, तो ये जो हमने करा, ये चार थे पिलर्स, ठीक है। अब पिलर्स के बाद किसके पिलर्स थे? रिसर्च पैराडाइम के पिलर्स थे। अब पिलर्स के अलावा रिसर्च पैराडाइम के टाइप्स भी होते हैं। अब क्या है ये टाइप्स? तो इसका पहला टाइप है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, सबसे पहले आया था पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये किसने दिया था? ये दिया था ऑगस्ट कॉम्प ने। ऑगस्ट कॉम्प, क्या था यहाँ पे? इनका बिलीफ था कि एक ही रियलिटी है जिसको कि समझा जा सकता है, जिसको कि पढ़ा जा सकता है। और वो रियलिटी कैसे आ रही है? वो रिसर्चर्स पता लगा रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करके। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या था? सबसे पुराना ओल्डेस्ट पैराडाइम जो था वो क्या था? ऑगस्ट कॉम्प ने दिया था। और इनका ये मानना था कि जो भी रियलिटी एस्टैब्लिश होती है, जो भी हम चीजों का पता लगा रहे हैं, वो क्वांटिटेटिवली ही हो सकती है, मतलब कि ऑब्जेक्टिवली ही हो सकती है। और रियलिटी जो है वो बस एक ही रियलिटी है, मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ एक ही रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसको कि समझा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है इसका। और वही रियलिटी सबके लिए एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि जो रियलिटी पता लगी है वो मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, कोई और ऑल्टरनेटिव रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्या प्रपोज करता है? ये एम्पिरिकल हाइपोथेसिस प्रपोज करता है। हमें पता है एम्पिरिकल और हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन रिसर्च, फैक्चुअल बेस्ड रिसर्चेस, सिर्फ उसी पे ये बात करता है। और ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसका डेटा कलेक्शन होगा जो कि सिर्फ क्वांटिटेटिवली ही होगा। और उसके बाद या तो उसे हम सपोर्ट कर, रिसर्च बताएगी कि हाइपोथेसिस या वो सपोर्ट होगा या फिर वो रिफ्यूट होगा, मतलब कि हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगा या फिर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये था ये था पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रियलिटी एक ही है जो कि हमें सिर्फ रिसर्च के थ्रू ही पता चल रही है। रिसर्च कर कैसे हो रही है? क्वांटिटेटिवली ही हो रही है। हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस ही कर रहे हैं रिसर्च को पढ़ने के लिए। और ये कैसे? यहाँ पे एम्पेरिकल हाइपोथेसिस होगी जिसको कि हम एक, जब भी रिसर्च करेंगे तो हम एक एम्पेरिकल हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब कि फैक्ट्स बेस्ड हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो कि डेटा एनालिसिस करने के बाद, क्वांटिटेटिवली डेटा को स्टडी करने के बाद या तो सपोर्ट किया जाएगा या उसको रिफ्यूट किया जाएगा। तो मुझे अब ये बताओ कि यहाँ पे ऑन्टोलॉजी फिर क्या होगी? ऑन्टोलॉजी जो हमने पिलर पढ़े और ये टाइप है, तो अब यहाँ पे जो ऑन्टोलॉजी पिलर है वो कौन सा होगा? क्या यहाँ पे रियलिज्म होगा या फिर यहाँ पे रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी होगी? बताओ। हमने पढ़ा ऑन्टोलॉजी, हमने पढ़ा रियलिज्म होता है एक टाइप उसका, और एक होता है रिलेटिविस्ट। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में जो कि कह रहा है कि एक ही सिंगल रियलिटी है, यहाँ पे रियलिज्म होगा या फिर रिलेटिविस्ट होगा? वेरी 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 गुड, वेरी गुड। आप ये आंसर कर रहे हैं, मतलब कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू कि बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। मेजोरिटी बच्चे इस टॉपिक को स्किप करके चले जाते हैं। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मीन समथिंग। सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब सही आंसर कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। राइट, वेरी गुड, यस, दिस इज रियलिज्म। क्यों है ये रियलिज्म? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही रियलिटी है। एक रियलिटी कौन बोलता है? रियलिज्म ही। रिलेटिविस्ट तो कहता है कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, किसी की कुछ, किसी की कुछ, कुछ। वेराज
रियलिज्म क्या कह रहा है कि एक ही रियलिटी है जो कि हमें रिसर्च के थ्रू पता चलेगी। अब रियलिज्म के भी दो टाइप होते हैं, नेव एंड क्रिटिकल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे नेव है या क्रिटिकल है? ये नेव रियलिज्म है या ये क्रिटिकल रियलिज्म? वो पॉजिटिविस्ट कह रहा है एक ही रियलिटी है और वो हम सिर्फ रिसर्च के थ्रू ही पता कर सकते हैं, रिसर्च ही बताएगी। तो क्या ये नेव है या ये क्रिटिकल है? ये बता दो। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। Absolutely. Very good. Very, 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 very good. Yes, this is Nave. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। यस, दिस इज नेव। नेव रियलिज्म है ना? क्यों? क्योंकि नेव रियलिज्म ही कह रहा है कि जो है वो रिसर्च के थ्रू ही आएगी। क्रिटिकल तो कहता है कि हाँ, रिसर्च तो फाउंडेशन है ही, लेकिन रिसर्च 100% सब कुछ नहीं बता सकती। वेराज यहाँ पे पॉजिटिविस्ट पैराडाइम बात कर रहा है कि हम तो सब कुछ रिसर्च के थ्रू ही जानेंगे, सब रिसर्च हमारा देवता वो जो बता दिया वो बता दिया, 100% वहीं से सच आ गया और एक ही रियलिटी आएगी। वेरी 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 गुड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी कौन सी है? एपिस्टेमोलॉजी, क्या ये सब्जेक्टिव होगी या फिर ये ऑब्जेक्टिव होगी? अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड्स का ही यूज होगा सिर्फ, तो इज दिस सब्जेक्टिव और इज दिस ऑब्जेक्टिव? ये तो बता ही दोगे। ऑन्टोलॉजी बता दी तब तो ये भी बता दोगे। ऑन्टोलॉजी में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। एंड जो आंसर नहीं भी कर रहे हैं क्लास में, आई होप कि आपको भी समझ आ रहा होगा। ड्यू टू सम फैक्टर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, बट प्लीज डू पार्टिसिपेट। एक तो आपको पता है ना कि आपके चैट सिर्फ मैं देख सकती हूँ, सो देर इज फुल अनोनिमिटी। तो जो हम डी इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, कि अनोनिमिटी में लोग ज्यादा एक्ट करते हैं, तो डू दैट। आंसर गलत होगा तो क्या, किसको पता चल रहा है? और कौन जज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सब लर्न कर रहे हैं। तो प्लीज डू आंसर एवरीवन। वेरी गुड। Yes, exactly, correct. Absolutely. This is objective. Why is this objective? Because हम सिर्फ quantitatively कर रहे हैं। Quantitative कर रहे हैं मतलब objectively ही कर रहे हैं। Subjective तो लोगों का opinion पढ़ना हो गया, तो that is what? That is qualitative. पर यहाँ तो qualitative को हम consider ही नहीं कर रहे, यहाँ जो है वो quantitative ही है। Therefore यहाँ पे कौन सी epistemology है? यहाँ पे epistemology objective की ही है। Very very good everyone, very good. लेट्स सी टाइम क्या है, क्या हो गया। ओके, टाइम इज अबाउट टू बी अप। हमारे पास अभी काफी सारे और पैराडाइम्स रहते हैं, सो दैट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये एक टाइप था पैराडाइम का, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। इसके अलावा पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रेटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, ये काफी अच्छी बात है कि आज की क्लास में हमने पिलर्स कर लिए। मुझे लगा नहीं था हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो प्लीज, दो आप आंसर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको क्लियर हो गया, विच इज वेरी गुड। स्टिल रिविजन तो कर ही लेना, पढ़ाई जरूर करना। ठीक है, कोई डाउट्स है तो अब आप मुझसे पूछ लो। कोई भी डाउट्स हैं आज की क्लास से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड? ऑल क्लियर? ओके, हाउ इज दैट अ डाउट? ओके, thank you so much, Shelly. Your feedbacks are really very helpful to me. All right. चलो फिर।
No doubt. Can you recap epistemology, please? All right, all right. Epistemology basically study कर रही है कि हमें knowledge कैसे मिली। रियलिटी का हमने व्हाट इज रियलिटी हमने ऑन्टोलॉजी में देख लिया कि रियलिटी क्या है। क्या सपोज अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, बहुत फेमस ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है, हर एक फिलोसफर ने इस पे बात करी है। तो हमने ये स्टडी करी, हमने रियलिटी मैंने अपनी रियलिटी बनाई कि हाँ भगवान है। अब मैं इस रियलिटी पे लेकिन कैसे पहुंची? जैसे जब मैंने यहाँ आपसे पूछा कि क्या भगवान है, तो फिर काफी ने कहा कि कुछ पावर फील होती है। आई फील दैट देयर इज सम एक्सटर्नल पावर। तो ये एक्सटर्नल सुपर पावर जो उन्हें फील हुई, इसके थ्रू उन्होंने अपनी रियलिटी को एस्टैब्लिश करा कि हाँ मेरे लिए भगवान है। तो ये जो नॉलेज हमने कंस्ट्रक्ट करी, मतलब कि जो ज्ञान है और जो ज्ञान पाने का जो रास्ता है, लाइक कैसे पता चला कि ये भगवान होते हैं, दैट इज व्हाट एपिस्टेमोलॉजी स्टडीज। इसीलिए ये या तो सब्जेक्टिव हो सकती है या तो ऑब्जेक्टिव हो सकती है। हम या तो सब्जेक्टिवली कि मुझे कुछ फील हुआ, मुझे एक पावर फील होती है, एक एक्सटर्नल प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, सब्जेक्टिवली मैंने या तो स्टडी करा, या फिर ऑब्जेक्टिवली मैं स्टडी कर सकती हूँ, मैं ऑब्जेक्टिवली अप्रोच कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिवली लोगों से पूछ सकती हूँ, कोई क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करूं कि कितनी बार आपको कुछ चमत्कार होते दिखा, कोई मिरेकल होते दिखा, या फिर बैड टाइम्स में आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स मिली, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्टिवली बनाना। तो इट कैन बी ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिवली या सब्जेक्टिव, लोगों के ओपिनियंस पढ़ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, उसमें डेवलप करना। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी इज बेसिकली कि जो नॉलेज है हमें कैसे मिली वो नॉलेज, हम नॉलेज को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मैं अभी अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है और फिर मैंने नॉलेज को गेन करा, तो ये गेन कैसे हुआ, किस तरीके से किया गया, व्हाट इज नॉलेज, हाउ डिड वी स्टडी दिस नॉलेज, मुझे कैसे पता चला कि ये रियलिटी है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। ओके पलक। फिर और कोई डाउट्स हैं किसी के? ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। चलो फिर अगर और डाउट्स नहीं है तो वील एंड द सेशन। ओके, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल हमारी फिर क्लास है 5:30 बजे, कल फिर मिलेंगे और हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम फिलोसफी, यस यू कैन से दैट, बिकॉज बहुत टाइम तक साइकोलॉजी नहीं थी, फिलोसफी ही थी। तो इट डज स्टेम्स फ्रॉम फिलोसफी, वहीं से फाउंडेशन हुई। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। We'll meet again tomorrow and we'll study more of research. Bye bye. Thank you. Bye. Have a nice night. Good night. Bye bye.